is that India is at a turning point. It's at a takeoff stage. And this is at the cusp of a change in our growth trajectory. And given that we have solved a lot of issues regarding basic services, access to basic services, and having reduced extreme poverty to less than 5% almost, I think the country is at a takeoff stage where it can grow very, very rapidly, as has been done by many countries in the past. So this was the context. Given this, as well as the demographic dividend that India is actually blessed with for the next 20-25 years, that we can grow rapidly, the Prime Minister gave a call that all states to prepare a vision document at their level. And this is already visible in the growth of India. We are the fourth largest economy as I speak. We are a $4 trillion economy as I speak. And this is not my data, this is IMF data. India today is larger than Japan. So it's only the United States, China and Germany which are larger. And if we stick to what is being planned, what is being thought through, it's a matter of another 2.5 to 3 years, we would become the third largest economy. Very welcome development that we are the fourth largest economy in the world today with a GDP of in excess of $4 trillion economy. As things proceed, we see a GDP growth of 6.2% in 2025 and 6.3% in 2026. So with this kind of a growth, we expect to overtake Germany and become the third largest economy in a span of 2.5 to 3 years. How has this growth come about? There are several important transformative triggers. First, of course, is the demographic dividend. Domestic economic reforms, global cues are another factor. Electric vehicles, we are powering green energy. Healthcare insurance has been growing at a very fast clip. Renewable energy, India has very impressive development. And if you see the energy mix of India today, about 1/3 of the total energy is generated by renewable energy sources. Digitalization-induced productivity gains have also significantly provided an important impetus to the development process of the Indian economy. Well, we expect that India will consistently grow in a band of about 6.5 to 7.5%. And with this kind of a growth continuing, we expect a significant rise in terms of per capita income, in terms of India's growing economic ascendancy at the global level. There has been significant national level initiatives like Make in India, Make for India, focus on infrastructure, focus on in the industrial sector. All these will lead to important gains for the Indian economy. है तो IMF का भी जो रिसेंट स्टेटमेंट जो है डॉक्यूमेंट है उसमें 2025 में इंडिया के फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने का प्रेडिक्शन था। तो उस हिसाब से हमारी इकोनॉमी का भी जो साइज है वो 4.128 ट्रिलियन डॉलर का हो गया है और जापान का है वो 4.186 ट्रिलियन का है। तो उससे हम निश्चित रूप से बड़े हो गए हैं। तो ये हमारे लिए ग्लोरियस स्टेप है, इसमें कोई संदेह नहीं। और ये सब सरकार का जो एक कम्युनिटिव एफर्ट जो रहा है पिछले समय में, जिसमें गति शक्ति योजना, आपका जल शक्ति योजना है, उसके अलावा आत्मनिर्भर भारत अभियान जो था, इन सब के अलावा जो हमारा जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर पे और स्किल डेवलपमेंट पे सरकार का जो एक कॉम्प्रहेंसिव स्टार्टअप स्टैंड अप जो प्रोग्राम्स थे, उन सब का रिजल्ट रहा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और चूंकि अब जैसा परसेप्शन है कि हम 2.5-3 साल में नेक्स्ट थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे, इसमें भी कोई संदेह नहीं। ये स्टेप भी हमारे लिए कठिन नहीं है और दूर नहीं है, पक्का होएगा। लेकिन हाँ, जो दूसरा एक जो अभी पहलू मैं जो सोच रहा हूँ उसमें ये है कि राज्यों का जो हमारा डेवलपमेंट है बहुत हेट्रोजीनियस है। यदि हम अलग अलग स्टेट्स का आज की तारीख में जो उनका जो ग्रोथ रेट है उसके हिसाब से यदि हम उनका प्रेडिक्शन करते हैं तो अलग कुछ राज्य तो ऐसे हमारे देश में, अब मैं आपको उदाहरण के रूप में बताऊं, आज हमारा गोवा का जो पर कैपिटा इनकम है बिहार से 10 गुना ज़्यादा है। दूसरा यदि मैं बोलूं कि हमारे देश के 6 बड़े राज्य ऐसे हैं जिसमें महाराष्ट्र है, गुजरात है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, बिहार और पश्चिमी बंगाल और उत्तर प्रदेश, ये देश का जो सकल घरेलू उत्पाद है उसका 52% से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। तो अब अदर जो स्टेट्स हैं, सभी राज्य और यूनियन टेरिटरीज, अब आप आइडिया लगा लीजिए हमारा यहाँ विकास का स्तर कितना विविधता लिए हुए है। तो कुछ राज्य यदि उनका प्रेजेंट जो ग्रोथ रेट है उससे हम सोचें तो वो तो 34-35 तक अपना जो डेवलप्ड जो नेशंस का स्टेटस है वो प्राप्त कर लेंगे। कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो जाके 69-70 के आसपास अपना डेवलप जो स्टेट है उसका स्टेटस प्राप्त कर पाएंगे। पर
कैपिटा इनकम के हिसाब से देखें तो इस हेट्रोजेनाइटी को दूर करने के लिए सरकार को एक कम्युलेटिव एफर्ट करना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी, स्टेट गवर्नमेंट को भी। दूसरी तरफ जैसे अब हम मैक्रो लेवल पे देखते हैं तो हमारा पर कैपिटा इनकम के रेफरेंस में यदि हम परचेजिंग पावर पैरिटी की बात करते हैं तो नो डाउट स्टिल वी आर फार बिहाइंड और हमारा रैंक करीब 119 के आसपास आता है। लेकिन हम जनरल मैक्रो लेवल पे पर कैपिटा परचेजिंग पावर पैरिटी की बात करते हैं कंट्री का, तो हाँ उसमें हम 3rd नंबर पे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है और इसमें क्वालिटी इंप्रूवमेंट और ह्यूमन डेवलपमेंट की जो बात करते हैं उन सब पे हमें फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो पर कैपिटा इनकम का जो स्टैंडर्ड है आज भी दुनिया के अंदर हम उसमें बहुत पीछे हैं, करीब 120 या 21 नंबर के आसपास है। इसी तरह से हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसमें भी हम 133 कंट्रीज़ के कंडीशन में आते हैं। तो ये कुछ डेटा जो हैं वो अलार्मिंग हैं, तो उन पे भी सरकार को ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि क्वालिटी ऑफ लाइफ और लोगों को अच्छी सुविधाएं देना ये भी सरकार की प्रायोरिटी में आते हैं। तो इस तरह से इसमें कोई संदेह नहीं कि ओवरऑल कम्युलेटिव एफर्ट कंट्री को अच्छी डायरेक्शन में ले जा रहे हैं, लेकिन अभी उस पर और बहुत वर्क करने की ज़रूरत है।